Hello students, welcome to my class. I am Kajal and today we are going to start with the first chapter of English Literature class 10th. This is the book First Flight, a textbook in English for class 10th by NCERT. So the name of the first chapter is A Letter to God. It is written by G.L. Fewings. Before starting with the reading of the chapter, I would like to tell you some basic rules of my class and I hope each and every one of you will follow it. First thing first, see, you need to have your books along with you. If you don't carry your own books while listening to this lecture, there is no point in listening to this lecture. See, when I'm explaining the chapter for you, then you should be having your books along with you so that you can understand it better, you can read it yourself also. Alright, so do carry your books along with you. And the second rule is that you need to carry a notebook along with you so that whenever I tell you the explanation of some difficult phrase or if I tell you the meaning of a difficult word, then you are supposed to write it down in that notebook so that it will help you later on. Alright, so let's begin with the reading of the chapter. I will try my best that I give you the meanings of all the difficult words and I will try my level best that I explain the chapter in the simplest way possible. I will tell all the things in very easy English or wherever it is required I will tell in Hindi also. Alright, so let's begin with the reading of the chapter. The name of the chapter in itself is very interesting. A letter to whom? Not any person. A letter to God Himself. It is a very beautiful story written by G.L. Fewings. The name of the writer is G.L. Fewings. G stands for Gregario, L stands for Lopez, and Fewings is the surname which has already been given in your books. So write down the full name of the author because in your books only G.L. Fewings is given. So write down the spelling. G stands for Gregario. The spelling is G-R-E-G-A-O-R-I-O. I am again repeating. G-R-E-G-A-O-R-I-O. Gregario. Lopez. L-O-P-E-Z. Lopez. Gregario Lopez Fewings is the name of the author. Okay, let's read the chapter. But before reading the chapter, we must read the before you read part, which is given in the very beginning. See here, it is given in the very beginning of the chapter in NCERT books, almost in front of all the chapters. Before reading the chapter, you are supposed to read the before you read part. Why? Because it generates the interest. It makes you understand what is the background of the story and it creates interest of the reader. So let's see what's there in before you read part. They say, faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. So first thing comes to our mind is, who are they who say this thing that faith can move mountains? जैसे हिंदी में हम बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, पहाड़ भी हिलाया जा सकता है. सो कहाँ से शुरुआत करते हैं हम? लोग कहते हैं. सो ये जो हिंदी में हम बोलते हैं लोग कहते हैं, वो इंग्लिश में हम बोलते हैं they say. So who are they? They are the people of the society. So it is kind of a general saying, ज़्यादातर लोग जो कहते हैं. So they say stands for that. Okay. They say faith can move mountains. विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि पहाड़ भी हिलाया जा सकता है. But what should we put our faith in? हम अपना विश्वास लेकिन बनाएं किस पर? किसी इंसान पर, किसी साधु संत बाबा महाराज पर या भगवान पर? So there are a lot of choices. So here comes a question, पर अपना विश्वास बनाएं किस पर? ये जो स्टोरी है ये
फेथ के बारे में स्टोरी है। किसके फेथ के बारे में? जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जिसका नाम है लेंचो, जो कि एक फार्मर है जिसे भगवान पर बहुत ही ज्यादा गहरा विश्वास है। इतना विश्वास कि जब वो किसी मुसीबत में था तो उसने किसी भी इंसान को अप्रोच नहीं किया, उसने सीधा भगवान को लेटर लिख दिया टू सीक हिज हेल्प। ओके, सो यस, so basically in the before you read section, it is being told that it is a story about what? It is a story about faith in God. So इसी के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में। सो दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। डेलिकेटली का क्या मतलब होता है? डेलिकेटली का मतलब होता है नाजुक, बट यहां क्या मतलब है? केयरफुली। नाजुक चीज को हम बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं। सेम वे ये जो एक बहुत ही नाजुक सवाल है कि विश्वास करें तो किस पर करें, फेथ रखें तो किस पर रखें और कितना गहरा फेथ रखें। सो ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही डेलिकेटली, बहुत ही केयरफुली दर्शाया गया है। पोजेस, दर्शाना, टू प्रेजेंट। सो बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही केयरफुली दर्शाया गया है इस चैप्टर में। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। रूइंड इज बर्बाद हो जाना। लेंचो एक फार्मर है जिसको भगवान पर बहुत भरोसा है, तो जब उसकी जो क्रॉप्स थी वो रूइंड हो गई, यानी कि बर्बाद हो गई, तो उसने मदद के लिए भगवान को एक लेटर लिखा asking for 100 pesos. What is pesos? Pesos is a currency which is the currency of a lot of Latin American countries. जैसे इंडिया में हम रुपीज यूज करते हैं हमारी करेंसी में, सेम वे कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है जहां की करेंसी है पेसोस। सो लेंचो जो है वो उन्हीं किसी एक कंट्री से बिलोंग करता होगा। Does Lencho's letter reach God? Let's see. Does God send him the money? Let's see. Think what your answer to these questions would be and guess how the story continues. So सोचो जरा इस बारे में, इंटरेस्ट जनरेट करो थोड़ा कि क्या हुआ होगा। क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचा होगा या नहीं? क्या भगवान ने उसकी मदद की होगी या नहीं? अगर करी होगी तो कैसे पैसे भेजे होंगे? नहीं करी होगी तो क्यों नहीं करी होगी? सो थिंक अबाउट इट, गेस अबाउट इट, जनरेट सम इंटरेस्ट एंड देन लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। ओके, सो आई एम जस्ट skipping this activity part given on this page and I am directly coming to page number 3 where the actual chapter is there. So let's begin with the house. The only one in the entire valley sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. So, first paragraph में explain किया गया है किसके बारे में? लेंचो के घर के बारे में। The house, लेंचो's house, the only one, यानी कि एक अकेला घर है पूरी वैली में। और वो कहाँ सिचुएटेड है? एक लो हिल, बहुत ऊंची हिल नहीं, एक लो हिल के क्रेस्ट पे। क्रेस्ट इज द मीनिंग इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि एक लो हिल है, उसका जो टॉप का एरिया है उस पे, क्रेस्ट पे लेंचो का घर है, जहां से क्या देखा जा सकता है? नीचे बहती हुई एक रिवर देखी जा सकती है और लेंचो अपने फार्म्स को देख सकता है जिसमें उसने क्या उगाया है फिलहाल? कॉर्न, यानी कि मकई की फसल उगाई है। सो बेसिकली उसके घर से उसके खेत दिखाई दे रहे हैं और खेतों में क्या दिखाई दे रहा है? कॉर्न की फसल जिस पर छोटे छोटे फूल आ चुके हैं। वो कैसे दिख रहे हैं? छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई से देख रहे हैं तो वो छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिख रहे हैं, बहुत सारे फूल उस फसल के। और इतने सारे फूल मतलब एक हिसाब से एक प्रॉमिस है कि अच्छी फसल होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फूल हैं तो बहुत सारे मकई के दाने भी हो जाएंगे।
सिर्फ एक चीज की कमी है। किस चीज की? द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। What is the meaning of downpour? Write it down. A heavy rainfall, downpour. Or at least a shower, a shower. शावर लेते हैं हम सुबह सुबह, हल्की फुल्की बारिश को शावर बोलते हैं। सेम वे जब हम नहाते हैं, शावर लेते हैं, उसमें बहुत हैवीली पानी नहीं आता है, थोड़ी बहुत हल्की हल्की फुहारें आती है, तो हल्की फुल्की बारिश को शावर बोलते हैं। और हैवी रेनफॉल को हम डाउनपॉर बोलते हैं। सो सिर्फ किस चीज की कमी है लेंचो के फार्म्स में? बारिश की। लेंचो चाहता है या तो एक हैवी डाउनपॉर हो जाए या एटलीस्ट हल्की फुल्की बारिश हो जाए, एटलीस्ट अ शावर। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So throughout the daybreak, throughout the morning, सुबह जब से हुई है तब से लेंचो ने, जो एक ऐसा फार्मर है जो अपने खेतों को बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही क्लोजली, बहुत ही नजदीकी से जानता है, उसको पता है उसके खेत को क्या चाहिए, उसकी फसलों को क्या चाहिए। तो वो बहुत उम्मीद लगाकर सुबह से और कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ एक काम कर रहा है। क्या? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बस देख रहा है। क्यों देख रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में उसको उम्मीद है कि बहुत काले काले जो बादल हैं वो विंड के साथ उसकी वैली की तरफ आ जाएं और उसके खेतों पे बरस जाए, तो वहां अच्छी बारिश हो जाए और उसकी फसल अच्छी हो जाए। सो फ्रॉम द मॉर्निंग लेंचो इज डूइंग नथिंग एल्स बट सी द स्काई, स्काई की तरफ देख रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन who was preparing supper replied, yes, God willing. So कौन है वुमन? डेफिनेटली लेंचो की वाइफ। तो लेंचो अपनी वाइफ को कहता है कि मुझे लगता है कि अब तो हमें बहुत अच्छा पानी मिलने वाला है, वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर। लग रहा है ऐसा। क्यों लग रहा है? क्योंकि जब लेंचो देख रहा है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, बादलों को, स्काई की तरफ, तो उसको काले बादल दिखाई दे रहे हैं। तो उसको उम्मीद है कि उस तरफ से हवा के साथ बादल उसकी वैली की तरफ आ जाएंगे और उसके खेतों को अच्छा पानी मिल जाएगा। और उसकी वाइफ क्या रिप्लाई करती है? यस, गॉड विलिंग। सो यानी कि सिर्फ लेंचो को ही नहीं, उसकी वाइफ को भी बहुत विश्वास है कि हाँ ऐसा हो जाएगा अगर भगवान चाहेंगे तो, एंड होपफुली भगवान ऐसा चाहेंगे। सो उन्हें बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। और वाइफ अभी क्या कर रही है? शी इज प्रिपेयरिंग सपर। सपर इज डिनर। ओके, so she is preparing the supper and she says yes, God willing. The older boys are working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. Okay, so जो लेंचो है उसके कुछ बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है। लेंचो के जो बड़े बेटे हैं, द ओल्डर वंस, कितने हैं नहीं मेंशन किया है। तो जो ओल्डर वंस हैं वो फील्ड्स में, खेतों में काम कर रहे हैं, एंड जो यंगर वंस हैं वो घर के ही आसपास खेल रहे हैं। एंड कुछ देर के बाद क्या होता है कि लेंचो की वाइफ सबको बुला लेती है, दैट कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, big drops of rain began to fall. So during the time of the dinner, सब लोग मील्स ले रहे थे, अपनी मील ले रहे थे, डिनर कर रहे थे। उस वक्त अचानक से क्या हुआ? जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी करी थी, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी। सो जैसा कि लेंचो ने सोचा था, जैसा कि लेंचो ने बोला था, वैसा ही हुआ। बारिश आने लग गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स
गिरने लग गई आसमान से। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आता हुआ क्या दिखाई दे रहा था, क्या अप्रोचिंग था? बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। बादल जो बहुत काले गहरे होते हैं, बारिश का मौसम होता है तो वो माउंटेन्स की तरह दिखते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लेंचो को आते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल, काले काले बादल। सो लेंचो इज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर कैसी है? फ्रेश है, स्वीट है। क्यों है फ्रेश और स्वीट? बारिश के मौसम में एयर अच्छी अच्छी हो जाती है, स्वीट स्वीट सी फ्रेग्रेंस आती है, जैसे कि बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर पड़ती है तो पहली बारिश की जो बूंदें होती है उससे इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। सो बेसिकली मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, बारिश आ रही है, लेंचो और उसकी फैमिली खुश है और एयर जो है वो बहुत ही सुहावनी, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही स्वीट है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. So the man, who is the man? Lencho. Lencho moves out. किस लिए? To feel the pleasure of the raindrops on his body. So he went out. He is very happy, enjoying the rain. And when he returned, he exclaimed. What is exclaimed? Speaking something in a lot of excitement. So जैसे ही वो वापस अंदर आता है, he exclaims to his wife, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. So what Lencho says, it is a very important phrase of this chapter. बहुत बार ये आता है कि इसे एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट लेंचो मीन्स बाय दिस थिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, सो अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। क्या कहता है लेंचो? ही एक्सक्लेम्स इन जॉय। बहुत खुशी से वो अंदर आके ये चीज बोलता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये बारिश की बूंदे नहीं है जो बारिश के रूप में बरस रही हैं धरती पे, आसमान से। ये कॉइन्स हैं, ये न्यू कॉइन्स है, ये नया पैसा है जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है। समझ लो कि जो बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं और जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट्स के बराबर हैं। ऐसा क्यों बोलता है लेंचो? बिकॉज अच्छी बारिश हो रही है तो अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो मार्केट में बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। सो लेंचो बहुत खुश है और उसको ये बारिश की बूंदें बारिश की बजाय आने वाले फ्यूचर के नए नए पैसे लग रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर लाइक 10 सेंट्स एंड द स्मॉल ड्रॉप्स आर लाइक 5 cents for Lencho. So can you see the level of excitement Lencho is having looking at the rainfall? Okay, so then what happens? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. So वो बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन वाले एक्सप्रेशन के साथ अपने फील्ड को देखता है, बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी जो फील्ड है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं और उसकी पूरी फील्ड कवर हो गई है। ड्रेप्ड का क्या मतलब है? कवर्ड। नॉर्मली ड्रेप्ड का मतलब होता है टू बी कवर्ड बाय अ क्लॉथ, बट यहाँ क्या मतलब है? कवर्ड बाय रेन। उसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसकी जो पूरी फील्ड है जिसमें सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स हैं वो पूरी की पूरी उसकी जो फसल है वो कवर हो गई है रेन के चादर के नीचे। सो वो बहुत खुश है, उसको देखकर बहुत सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक से क्या होता है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा बहने लगती है, तूफान आ जाता है और अचानक से क्या होता है? एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज hailstones begin to fall. और फिर सडनली अचानक से क्या होता है? बारिश के साथ साथ hailstones यानी कि
ओले। ओलों का तूफान आ जाता है बारिश के साथ साथ आसमान से, बड़े बड़े, वेरी लार्ज, छोटे ओले भी नहीं, वेरी लार्ज, बड़े बड़े बर्फ के गोले यानी कि ओले बारिश के साथ साथ गिरने लगते हैं। सो लेंचो घबरा जाता है, सडनली ये क्या हो गया उसकी फील्ड में, तूफान आ गया है, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लग गए हैं और ओलों से फसल को बहुत नुकसान होता है। और ओले भी छोटे मोटे नहीं, वेरी लार्ज hailstones begin to fall. These truly did resemble new silver coins. और अब लेंचो दुखी होकर सोचता है कि ये तो सच में ही सिल्वर कॉइन्स जैसे दिख रहे हैं। जैसे सिल्वर कॉइन दिखता है, बड़ा बड़ा चमकदार सिल्वर सा, सेम वे ओले बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो भी। उसको लेंचो को अब बहुत दुख हो रहा है। लेंचो देख रहा है कि ये तो सच में ही सिल्वर के कॉइन्स की तरह दिखने वाले ओले गिरने लग गए हैं। ही इज वेरी हेल्पलेस राइट नाउ। द बॉयज, जो लेंचो के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो जो छोटे बेटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं लेंचो के, उन्हें तो नहीं पता कि ओले हैं, नुकसान करेंगे। उनको तो बस छोटे बच्चे हैं, उनको तो वो जो ओले हैं वो चमकदार छोटे छोटे फ्रोजन पर्ल्स के जैसे लग रहे हैं। फ्रोजन वी ऑल नो, जमा हुआ फ्रोजन, पर्ल्स मोती। सो उनको वो जो बर्फ के टुकड़े हैं, जो हेल स्टोन्स हैं, जो ओले हैं, वो छोटे छोटे फ्रोजन पर्ल्स जैसे, मोतियों जैसे लग रहे हैं। सो बच्चे खुश होकर एक्साइटमेंट में उन्हें कलेक्ट करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सो इट्स इनफ फॉर द डे। बाकी का चैप्टर मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाती हूँ आपको। टिल देन टेक केयर एंड in fact I will give you a quick summary of the chapter till now once again. So हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि एक लेंचो नाम का फार्मर है जो कि भगवान में बहुत विश्वास रखता है। सो ये जो स्टोरी है, इट्स अ स्टोरी अबाउट फेथ इन गॉड। ओके, सो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें एक्सप्लेन किया गया है लेंचो के घर के बारे में और उसके फील्ड्स के बारे में। घर कहाँ है? एक अकेला घर है पूरी वैली में, एक लो हिल के क्रेस्ट पे यानी कि टॉप पर सिचुएटेड है। वहां से एक रिवर दिखती है और वहां से उसके कॉर्न के जो फील्ड्स हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं। फील्ड्स में फसल है, उसमें फूल आ चुके हैं, सिर्फ एक बारिश की कमी है। सो लेंचो बारिश का बहुत शिद्दत से वेट कर रहा है। लेंचो चाह रहा है या तो एक हैवी सा डाउनफॉल हो जाए, हैवी रेनफॉल हो जाए, या फिर एटलीस्ट अ शार्प, थोड़ी सी माइल्ड सी रेनफॉल तो जरूर हो जाए, तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। सो ही इज एक्सपेक्टिंग रेन, और वो देखता है कि बहुत काले काले बादल हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। सो वो उम्मीद की निगाहों से सुबह से ही उस आसमान की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंड, उसने अपनी वाइफ को बोला जब उसने देखा कि जो बादल हैं काले काले वो हवा के साथ दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स हिज ओन वैली। सो उसको उम्मीद है कि बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। सो एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी वाइफ को बोलता है कि होपफुली नाउ वी आर गोइंग टू गेट वाटर। एंड वाइफ भी बोलती है यस, गॉड विलिंग। एंड देन वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। जब डिनर कर रहे होते हैं सो उस वक्त अचानक से रेनफॉल शुरू हो जाती है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में लेंचो की एक्साइटमेंट और खुशी के बारे में बताया गया है कि जैसे ही रेनफॉल शुरू होती है तो बारिश की बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट्स के बराबर समझता है और बारिश की छोटी बूंदों को वो 5 सेंट्स के बराबर समझता है और बहुत खुश होता है। लेकिन अचानक से क्या होता है, तूफान आ जाता है, एक स्ट्रॉम आ जाता है, तेज हवा बहने लगती है, स्ट्रॉन्ग विंड बहने लगती है और अचानक से क्या होता है, हेल स्टोन्स यानी कि ओले गिरने लगते हैं और फसल खराब होने लगती है। लेंचो परेशान होता है और अब जो ये हेल स्टोन्स हैं वो सच में कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं, बड़े बड़े चमकदार, लेकिन वो बहुत डिस्ट्रक्शन करने वाले हैं लेंचो की जो कॉर्नफील्ड है उसमें। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, लेंचो के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इस चीज का कोई एहसास नहीं है। वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें ये छोटे छोटे बड़े बड़े, इनफैक्ट छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े जो ये ओले हैं वो फ्रोजन पर्ल्स की तरह दिखाई दे रहे हैं,
जमे हुए मोतियों की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो भाग भाग कर उनको कलेक्ट कर रहे हैं। सो अब तक के लिए हमने यही पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी एट होम, बी सेफ, टेक केयर एंड डू स्टडी। पढ़ाई काम आएगी, पढ़िए आप। थैंक यू, हैव अ गुड डे।